Welcome student, this is a new video of 10 series in which we are going to learn today present perfect tense. So without wasting time, let's get started. So in this class, we are going to learn present perfect tense and I will be telling that what's the meaning of perfect. So perfect is something that has been done or that has been taken place. ऐसे काम जो हो चुके हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो आपने कंप्लीट कर ली है, there's no any kind of clue exist there और वो काम कंप्लीटली हो चुके हैं, उस सेंटेंस को, उन कैटेगरी की सेंटेंस को हम इसमें पुट ऑन करते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई वुड से इन ब्रीफली कि ऐसे काम जो प्रेजेंट में हो चुके हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, राइट. लेट्स नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो यू नो, एज आई टोल्ड यू, देयर आर टू थिंग्स टू नो टू मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वुड बी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वुड बी मेन वर्ब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट. So talking about present perfect tense, helping verb, that would be has and have. And let me tell you one more thing. Has will be using with he has. It will become he has, she has. We can also use has with it. So it will become it has. Or we can you know, like give anybody's name over here. I would like to name myself, which is like Pawan has. So this is how we can use has. While talking about have, so we can use have with I have. I can also use we, and I can put have over here, so it will become we have. I can also note it down like this is they have and you have. So as of now I have given you some idea that has is going to use with them and have is going to be used with them, right? So I can say like he has, she has, it has, Pawan has, for example. You can say the Aditya has, you can say Shivani has, you can say Rahul has, right? Talking about have, so I can say I have, we have, they have and you have. So that's all about the matter of knowing the helping verb. जो हमारी helping verb क्या है, हमारी has and have. Now talking about third form, so main verb के तौर पर main verb की you know place पे हम third form का use करते हैं. Third form is nothing but third form of the main verb. Example are just in front of you. You can say gone. Gone is a third form of go. Taken is a third form of take, right? Taught is a third form of teach and fought is a third form of fight. So remember one more thing, all the perfect tense requires third form of the main verb. So always remember, जब हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हो जो हो चुके हैं प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, उनके लिए हमें थर्ड फॉर्म लगाना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए यू नो all the third forms are very mandatory to remember them. Now we can make simply sentences, but there is a statement written over there. ऐसे ही काम जो हो चुके हैं, सो यही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है ऐसे सेंटेंस को पहचानने की जो बेसिकली इस वाली कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं, जो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो ऐसे काम जो हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहूंगा. जैसे कि मैं जा चुका हूं, इट मीन्स जाने का काम हो चुका है, राइट. मैं क्लास ले चुका हूं, इट मीन्स मैंने जो क्लास ले रहा था वो अब खत्म हो चुकी है, विच मीन्स मैं क्लास ले चुका हूं. सो ऐसे काम जो हो चुके हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ करंट, अभी में जो काम हो चुके हैं उसको इस कैटेगरी में डालते हैं. और नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीखते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. ऑलराइट, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हैज एंड हैव इस तरीके से यूज होते हैं. इनके बाद हमें V3 लगाना होता है, जस्ट अ पीस ऑफ केक. आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल ओवर हियर. सो मेरा एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल मैं इफ आई राइट मैं जा चुका हूं. So maybe you can say this sentence when your mom is asking, right? You can say I have gone, I have gone, right? अगर आपको बोलना हो कि वो जा चुके हैं, so वो को हम बोलते हैं they, and they के साथ आपको पता है have लगता है, so you can simply say they have gone, right? अगर वो लड़का है, third person है, so for them you can use he, right? So he के साथ has लगता है, you can simply say that he has gone, right? So इस तरीके से हम simple sentence बना सकते हैं. और in front of you right now I'm gonna give you few you know simple sentences. For example, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, which means I have taught you. मैं निकल चुका हूं, I have left. मैंने सुन लिया है, I have heard. और I can say I have listened, right? मैं वो वाली मूवी देख चुका हूं, I have watched that movie. So आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी while I'm answering myself, while I'm giving my sentences, कि मैं थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा हूं. और यही आइडेंटिफिकेशन होती है थर्ड फॉर्म लगाना है किसके साथ, हैज एंड हैव के साथ. ऑलराइट,
So now we are going to learn how to make negative sentences. So now we are going to learn how to make negative sentences. See, हमने positive sentences, it means simple sentence बनाना सीख लिया जिसमें हमें सिर्फ subject लगाना है, has and have लगाना है, उसके बाद V3 का फॉर्म का यूज करना है. अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं. नेगेटिव में आपको आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मेनी टाइम्स, हमें सिर्फ एक वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज नॉट. नॉट लगता है after helping of, so it becomes has not, or I can also say that it becomes have not. So जिन के साथ हमने has लगाया था उन्हीं के साथ हम has not भी बना सकते हैं. For example, she has not, he has not, it has not. For example, I can say my name, that I can say Pawan has not, right? अगर मैं have की बात करूं तो have भी उन्हीं के साथ लगता है. For example, I have not, I have not, I have not, right? I can say we have not, we have not, they have not, you have not. So अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना आता है, so it's just a piece of cake to make negative sentence as well. और इसके बाद हमें सिर्फ V3 लगानी होती है. So वही एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि मैं जा चुका हूं, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है. So I can say I have gone, I have gone. मैंने बोला कि मैं नहीं गया हूं, मैं नहीं जा चुका हूं, which means I have not gone. वो नहीं आई है, she has not come. उसने क्लास नहीं ली है, she has not taken the class. मैंने नहीं पढ़ा है, I have not taught you. So हमें करना क्या है, हमें has and have के बाद not लगाना है और उसके बाद V3 लगाना है to make negative sentences. Alright, so I think it's just a piece of cake for you. अब हम सीखते हैं कि हम interrogative कैसे फॉर्म कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हम interrogative sentence को कैसे बना सकते हैं अगर हम present परफेक्ट की बात कर रहे हैं. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं. एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका हम आंसर यस या फिर नो में देते हैं, और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑन दी अदर हैंड ऐसे होते हैं जिनका हमें आंसर एक्सप्लेन कराना होता है, राइट. तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हमें सिर्फ आंसर यस या नो में देना होता है. उसके लिए यू कैन लर्न दिस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट. सो आपको ये याद करना होगा. सो जितने भी हेल्पिंग ऑफ लाइक हैज एंड हैव अभी हमने सब्जेक्ट के बाद लगाई थी, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा. वो बन जाएगा लाइक हैव यू, हैव आई. अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ही का, सो आई कैन से हैज ही. अगर एग्जाम्पल है शी का तो आई कैन से हैज शी. सो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसे सेंटेंसेस जो हमने लाइक हेल्पिंग ऑफ हमने सब्जेक्ट के बाद में लगाई थी, शी हैज बन रहा था, आई हैव बन रहा था, दे हैव बन रहा था. इंटरोगेटिव में क्वेश्चनिंग करते समय, क्वेश्चन पूछते समय, आस्क करते समय वो क्या हो जाता है, उन्हें इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम उसको पुट आउट कर देते हैं, राइट. सो इस तरीके से ये फॉर्म बन जाएगा हैव यू, हैव आई, हैज शी, हैव ही, हैज ही, राइट. अगर मैं किसी का नाम भी लेता हूं तो उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, लाइक हैज रोहित. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसे लगाते हैं. मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल रखना चाहूंगा, लाइक क्या आपने क्लास ली है. माय सेंटेंस वुड बी हैव यू टेकन द क्लास. क्या वो आ चुके हैं, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, क्या वो आ चुके हैं. सो हैव दे, आने को बोलते हैं कम, थर्ड फॉर्म वुड बी कम. सो हैव दे कम. क्या उन्होंने सोच लिया है, सोचने को बोलते हैं थिंक, थर्ड फॉर्म वुड बी थॉट. So I can say have the thought. इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख गए हैं और इनका आंसर यूजुअली हम यस या नो में दे सकते हैं. इसी के साथ हम सीखते हैं कि हम डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं जिसका आंसर हमें एक्सप्लेन कराना होता है. उसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा ब्रॉड करना होता है और उससे पहले हमें WH फैमिली को पुट आउट करना होता है, बस. राइट. अब WH फैमिली क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं. WH फैमिली फॉर एग्जांपल कैसे को हम बोलते हैं हाउ, व्हेन को हम बोलते हैं कब, और वेयर को हम बोलते हैं कहां, क्या को हम बोलते हैं व्हाट, ठीक है, कौन को हम बोलते हैं हु. सो इस तरीके से WH फैमिली हम यहां पर पुट आउट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम डबल इंटरोगेटिव या फिर पूरी तरीके से जो क्वेश्चन होता है जिसको हमें एक्सप्लेन कराना होता है वो भी हम पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछना हो कि आप कब आए हो, सो कब को हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन. हैव यू, व्हेन हैव यू कम. आप कब आए हो, व्हेन हैव यू कम. अगर मुझे थर्ड पर्सन से पूछना हो कि उन्होंने क्लास कब ली है, सो व्हेन हैज शी टेकन द क्लास, व्हेन हैज शी टेकन द क्लास, राइट. सो मैं ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट कर रहा हूं अब जिनका आंसर उनको एक्सप्लेन कराना पड़ेगा. वो यस या नो में अपना आंसर को कंप्लीट नहीं कर सकते, दे हैव टू एक्सप्लेन देयर आंसर, राइट. सो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, WH फैमिली लगाया है. कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं यहां पर. फॉर एग्जांपल आई कैन से लाइक आपने कैसा पढ़ाया है. सो हाउ
कैसे को बोलते हैं हाउ, सो आई कैन से हाउ हैव यू टॉट, आपने कैसा पढ़ा है, विच मीन्स हाउ हैव यू टॉट. फॉर एग्जाम्पल राइट, आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर. वो लाइक उन्होंने क्या खरीदा, सो व्हाट हैज शी बॉट. बॉट यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ बाय. सो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्लास लेट मी रिमाइंड एवरीथिंग यू गाइज कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन कराया है, इसके सिंपल सेंटेंस को बताया, नेगेटिव बताया, इंटेरोगेटिव एज वेल एज डबल इंटेरोगेटिव बताया. राइट, सो आपको यह फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है. राइट, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ आती है, और नेगेटिव में हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट लग जाता है. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ पीछे आ जाता है, और डबल इंटेरोगेटिव में ये WH फैमिली यहां पर आता है. इस तरीके से we can make numerous sentences, like with the help of these methods we can make thousands of sentences, and that is the way to improve your spoken English. If you love the video, you can hit the like button and subscribe to our channel. We are going to meet in the next class. Thank you so much.